Okay students, let us proceed to discuss about our new chapter, that is a definite integral, in which first of all we have to understand about our fundamental theorem of integral calculus. Okay, so what is the fundamental theorem of integral calculus? Okay, if f be the continuous function defined on the closed interval ab, and if integral of f of x dx is equal to g of x plus c, then okay, clear, if f be the continuous function defined on the closed interval ab, okay, and integration of f of x dx is equal to g of x plus c, then integration from a to b of f of x dx is equal to, okay, we have to define, we have to find, we have to calculate integral from a to b of f of x dx, and we are trying to understand about the fundamental theorem of integral calculus. Okay, students, the integral from a to b, here small a is known as lower limit of the integral, and small b is known as the upper limit of the integral. Okay, we have to find integration of f of x from a to b with respect to x. Okay, and since here integral of f of x dx is given as g of x plus c, so we can write g of x plus c, and this is equal to, and we have to write the limits, that is lower limit and upper limit. Okay, clear, and we have to substitute x by upper limit minus x by lower limit. Okay, please see here, g of x means upper limit plus c, okay, means replace x by upper limit of the integral minus replace x by lower limit of the integral, that is a, and plus c. Okay, क्लियर हो गया। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल x को आपको अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, मीन्स पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस, पहले प्लस फिर माइनस g ऑफ x। अब आपको क्या करना है, x को लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दीजिए, मीन्स पुट x इज इक्वल टू लोअर लिमिट, और c तो कांस्टेंट है, c इज आवर integral constant. Okay, let us solve this. G of b plus c minus, let us open the bracket, that is curly bracket, here plus into minus is minus g of a, and plus into minus minus c. C and c get cancelled, we have g of b minus g of a. So this one is the integral of f of x from a to b dx. Okay, clear. So this is our fundamental theorem of integral calculus, means integration from a to b of f of x dx is equal to g of b minus g of a, where b is the upper limit and a is the lower limit of the integral, and g of x plus c is our integration of f of x plus f of x dx. Okay, clear, आ गया समझ में। तो ये तो रहा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of f of x ds is equivalent to g of b minus g of. Okay, in this way we can solve one example which is written as integration from
2 to 5 of x square minus x dx. Okay, let us find the solution of this integral. Okay, so this is equal to integral of from 2 to 5 of x square dx minus integration from 2 to 5 of x dx. Okay, since we know that integration of f1x plus minus f2x dx is equivalent to integral of f1 of x dx plus integral of f2x dx. ओके, अगर प्लस और माइनस है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पर भी वैसा ही है. यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है एंड सेकेंड फंक्शन एक्स है. देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज एक्स. तो आपका इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ओके, और आपको क्या करना है? पुट लोअर एंड अपर लिमिट्स विद इंटीग्रल साइन. ओके, एंड सिंस वी नो दैट integration of x square, that is x cube upon 3, and put the lower limit as a fundamental concept of integral calculus. आपको क्या करना है? यहाँ 2 रखिए, यहाँ 5 रखिए, and we know that the power of x is 1, so we can find the integral, that is x square by 2. Okay, lower limit is 2 and upper limit is 5. Okay, so this one is equal to, you can write here, put the upper limit of integral, that is 5 cube upon 3. 5 cube upon 3 minus, अब आपको माइनस करना पड़ता है and write minus, and next we have to put x is equal to 2. 2 is the lower limit, so 2 cube upon 3 minus. Again we have to put x is equal to upper limit, that is 5, so 5 square upon 2 minus 2 square upon 2, this is equal to 5 cube. Okay, 5 cube 125 and 2 cube 2 2s are 4 2s are 8 upon 3 minus 25 upon 2 minus 4 upon 2, you can write it as 125. 15 minus 8 7, and 117 upon 3 minus 21 upon 2. Okay, to 2 7s are 14. After cross multiplication, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 1 is 3, 2 1s are 2 minus 3 1s are 3, 3 2 is 6 upon 3 2 is 6. 4 minus 3 1, 13 minus 6 7, and here 1, so 171 by 6. Okay, anyway this one is your answer for your definite integral, that is integration from 2 to 5 of x square minus x dx. तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि हमें कैसे डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना है. ओके, यूजिंग आवर फंडामेंटल theorem of integral calculus, और you can say definition of definite integral आपको ऐसे फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी कीजिए एग्जाम्पल को और थ्योरम को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. प्रॉपर्टीज of definite integral, in which first one is written as, first property is integral from a to a of f of x dx is equal to 0. Means if lower limit is equal to upper limit are equal, अगर दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, then the integration of a to a, integration from a to a of f of x dx is equal to 0. ओके, तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो उसका सोल्यूशन 0 होता है. ओके, लेट अस चेक. सिंस
Okay, if f be a continuous function defined on closed interval a and b, क्लोज इंटरवल, अब देखो a और a दोनों सेम है, क्लोज्ड इंटरवल a to b, what is our fundamental theorem of integral calculus, that is f be the continuous function defined on closed interval a to b। अब यहाँ पे लोअर लिमिट a है और b मतलब b इज इक्वल टू a, अपर लिमिट भी a है। ओके, और क्या करना है देन, एंड इंटीग्रल ऑफ f of x dx is equal to g of x plus c। ओके, फिर से बता रहा हूँ, हमें आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल फ्रॉम a to a of f of x dx is equal to 0, मीन्स यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल है। ओके, सो इफ f be a continuous function defined on a closed interval a to a, okay, and integral of f of x dx कितना है, g of x plus c है। okay, then integration from a to a of f of x dx is equal to g of x plus c from a to a, lower limit is a and upper limit is also a। okay, so let us put the value of x from upper limit। okay, चेक करते हैं, g of a, x को आपने क्या किया, अपर लिमिट रखा, c तो उसके साथ ही है, माइनस g of x is equal to a, where a is the lower limit, plus c, this one is equal to g of a plus c, let us open the bracket, plus into minus minus g of a minus into plus minus c और c कट जाएगा, g of a and g of a get cancelled with each other, that is 0, और 0 क्या हो गया, अपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड 0 दिखाया, हमें यही चाहिए था। सो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम a to a of f of x dx is equal to 0। ओके, क्लियर हो गया। अगर दोनों लोअर और अपर लिमिट आपस में इक्वल हैं तो उनका इंटीग्रल, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, दैट इज आप ऐसा बोल सकते हो, लेट x क्यूब dx फ्रॉम 5 to 5। मैंने जस्ट एक ऐसा एग्जांपल लिया, इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 5, लोअर और अपर लिमिट इक्वल है, 5 और 5, एंड फंक्शन कैसा है, क्यूबिक फंक्शन, दैट इज x क्यूब। ओके, एंड वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इज x to the power 4 upon 4, और यहाँ आपने रखा 5 to 5। अब आप रिप्लेस कर दीजिए, 5 to the power 4 upon 4 minus 5 to the power 4 upon 4, सही लिख रहा हूँ ना, अपॉन 4। और अभी कोई भी बता देगा कि इसका आंसर 0 है, कट गए आपस में, 0 हो गया। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज मान लीजिए 1 to 1 ऑफ 1 upon 1 plus x square dx, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 1 of 1 upon 1 plus x square dx, and we know that integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse of x upon a, 1 upon a into tan inverse of x upon a, आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, that is integration of 1 upon 1 plus x square, 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a into tan inverse of x upon a। तो यहाँ a तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 upon 1 tan inverse of x upon 1 x upon a is equal to 1, okay, a square plus x square, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 1, तो रख दीजिए tan inverse of 1 माइनस tan inverse of
1 और ये रहा 0। तो इस तरीके से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा कि इफ f be a continuous function defined on a closed interval a to a and इंटीग्रल ऑफ f of x dx g of x plus c है, तो आप उसका सलूशन कितना मिलेगा? द इंटीग्रल फ्रॉम a to a ऑफ f of x dx इज 0। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बताया, स्टूडेंट्स कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a। यहाँ पे क्या था? a to b है और यहाँ पे क्या है? b to a है। इंटीग्रल फ्रॉम b to a ऑफ f of x dx। कहने का मतलब है आप जैसे ही लोअर अपर लिमिट को एक्सचेंज करोगे यू विल बी गेट नेगेटिव इंटीग्रल। आपको मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेगा, बट साइन प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कब? व्हेन बी चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिमिट्स। मतलब लोअर लिमिट को आपने अपर लिमिट कर दिया, अपर लिमिट को आपने लोअर लिमिट कर दिया, देन द इंटीग्रल इज बिकम्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं इसको। द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज लेट f be a function, f be a continuous function defined on closed interval a to b and integral of f of x dx कितना है? g of x plus c है। ओके, इतना तो आपने देखा। एज्यूम किया कि इंटीग्रल ऑफ f of x dx, f क्या है? f be the continuous function defined on closed interval a b and इंटीग्रल ऑफ f of x dx है कितना? g of x plus c है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज a to b ऑफ f of x dx ये किसके इक्वल होगा? दैट इज g of x plus c के इक्वल होगा। लोअर लिमिट a and upper limit is b. On substituting the value of upper limit and lower limit and the values are subtracted with each other, g of b plus c, okay, minus g of a plus c, we get g of b plus c minus g of a minus c। ओके, ऑन ओपनिंग द करली ब्रैकेट। देखो c और c तो कट गया, बच क्या गया? बच गया जी बी माइनस जी ए। सो ए रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इंटीग्रल। चलिए राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है क्या? वह है आपका माइनस बी टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी भी आपने बोला है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होना चाहिए? जी ऑफ एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर रख दीजिए अपर लिमिट इज ए एंड लोअर लिमिट इज बी ऑफ इंटीग्रल। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स वी गेट जी ऑफ ए प्लस सी, ओके, माइनस जी ऑफ बी प्लस सी। दिस वन इज इक्वल टू g of a plus c minus g of b minus c. This one is equal to c and c get cancelled. We get g of a minus g of b. अब देखो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड g of b माइनस g of a है, तो अगर आप इसको नेगेटिव करोगे मीन्स g of a माइनस g of b। क्लियर? ओके, सो अगर आप इसको चेंज करते हो
that is g of b minus g of a. Clear? So this is equal to, take on opening the bracket, you will get that is minus g of a plus g of b. This is equal to g of b minus g of a, और a किसका वैल्यू है? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to b, a to b of f of x dx का वैल्यू. ठीक है, इस तरीके से आप आपने क्या प्रूव कर दिया कि माइनस इंटीग्रल फ्रॉम b to a of x dx इज इक्वल टू a to b of f of x dx. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कौन सा था? दिस वन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था. अपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया. ओके, आगे समझने बहुत आसान है. ठीक है, दैट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. जी ऑफ, बस ब्रैकेट ओपन करना था, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए. क्लियर ना? सो योर इंटीग्रल दैट इज a to b of f of x dx. ठीक है, तो ये तो रहा आपका सेकेंड प्रॉपर्टी. लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल रिटन ऑन द बोर्ड विच इज इंटीग्रेशन. समझो मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx. ओके, यही मैंने लिया, एग्जांपल लिया है, खुद से लिया है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ऑफ 2 dx, and this one is equal to x cube upon 3 from 1 to 2. We know that integration of x to the power n, that is x to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, तो पावर 2 है, पावर 1 से ऐड होगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा. प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे 1 to 2 वैल्यूज रख दीजिए. तो 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 minus 1. अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट इज 1. सो वी गेट 3. यहाँ पे एलसीएम 2 2 4 2 8, 8 minus 1 प्लस ये वाला प्लस था, तो यहाँ पे 2 minus 1 1, 1 2 2, 2 upon 1 दैट इज 7. ये 7 1 7 upon 3 प्लस 2 upon 1, तो 7 प्लस 2 3 6 upon 3 दैट इज 13 upon 3. ये तो रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने एग्जांपल लिया है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. समझने के लिए एग्जांपल लिया है, उसका लेफ्ट हैंड साइड है 13 upon 3. लेट अस टेक राइट हैंड साइड. दिस वन इज इक्वल टू माइनस 2 to 1 माइनस 2 to 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx. देखो यहाँ माइनस लिखा मैंने, तो यहाँ पे होगा कितना? दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 2 to 1. यहाँ बाहर माइनस है और अंदर प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. अंदर भी देखो प्लस है, बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा. दैट इज 2x 2 to 1. ठीक है ना स्टूडेंट्स, आया समझ में? यहाँ माइनस है ना, और अंदर देखो जैसे अभी ये आपने किया था वहाँ प्लस आया था. प्लस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन क्या है? 2 इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x. ठीक है, तो अब आप रख दो. दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 2 4 2 8 अपॉन 3 माइनस ये आएगा -1 दैट इज +2. तो यहाँ पे -7 अपॉन 3 है, यहाँ पे 2 अपॉन 1 है. दैट इज आप बोल सकते हो कि -7. यहाँ -7 आया और यहाँ भी ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया. क्लियर ना? वही 1 -8 -7
ऑलरेडी उसके पास -1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 7/3 प्लस 7/3 प्लस 2/1, तो ये हुआ +7 प्लस 2 3 जा 6/3 दैट इज 13/3। तो देखा आपने दोनों सिमिलर हैं, 13/3 लेफ्ट हैंड साइड का भी है, 13/3 राइट हैंड साइड का भी है। तो जैसे ही आप लिमिट को चेंज करोगे आपका जो इंटीग्रल होगा वह नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मीन्स टू से दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of f of x dx is equivalent to minus integral from b to a of f of x dx। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट? प्लीज मेक अ नोट्स, कॉपी कीजिए।